Hello student, today we are going to study our new chapter. So before starting the new chapter, let's have some introduction of the chapter. So first of all, you can see a picture here, right? So what you can see here, it's a plant, right? And some parts of the plant like what is this? Root, stem, branch, fruit, flower, bud and leaf. So it's a plant and these are the parts of the plant. So today our chapter is parts of plant. Today what we learn in this chapter, we will learn about the different parts of plant and different functions of the plant parts and what we get from these plant parts. Okay, so let's start the new chapter here, parts of plant. Like us, a plant is also a living thing. In last chapter, I told you that plant is a living thing. Why plant is a living thing? Because it needs food, air and water to grow and live. Plant can breathe also and plant can grow also. That's why it's a living being. A plant body has different part like our body. हमारी बॉडी के जैसे ही प्लांट की बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. अ प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन प्लांट. प्लांट की बॉडी जो होती है टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, शूट एंड रूट. कौन से दो पार्ट्स होते हैं प्लांट की बॉडी के मेन दो पार्ट्स कौन से होते हैं? रूट एंड शूट. व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज शूट? सो दिस पोर्शन इज रूट एंड दिस होल पोर्शन विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट. सो now we will discuss about the root and the shoot part of the plant. Parts of plant, there are two main parts, that is root system and shoot system. Root is below the ground. Below the ground part is called root system and shoot system is above the ground. Above the ground. So it's a below the ground and this is above the ground. Okay. So above the ground parts are branches, leaves, buds, flower, fruit, stem. Okay, you can see here all the parts, but in all these parts one part is the main, and what is that? That is stem. Stem is the main part of the plant shoot system. Why? Because you can see here it's a stem and all the parts arise from here. Okay, only from the stem. Leaves arise from the stem, branches also arise from the stem, fruit, flower, bud, everything arise from the stem. So that's why stem is the most important part of the plant shoot system. Okay, in root system what we learn about the types of root. So there are two types of root. One is taproot and other is fibrous root. What happened in taproot? In taproot, like it's a stem, it's over here now. So what kind of root is there? It's only one branch of root you can see here, and small branches arise from it, a small side branches. But in fibrous root what will happen? After the stem over, lots of branches arise of the roots. बहुत सारी रूट्स की ब्रांचेस जो होती हैं वो निकलती हैं, लेकिन टैप रूट में सिर्फ एक ब्रांच होती है और उसकी साइड ब्रांचेस होती हैं. बट यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं किसकी? रूट की. तो इसीलिए हम इसे फाइब्रस रूट बोलते हैं और इसीलिए इसे हम टैप रूट बोलते हैं. तो अब हम टैप रूट के बारे में पढ़ेंगे. टैप रूट. In taproot, a main thick root grow from the end of the stem and many small side root grow from the main root. As I told you, एक main branch होती है और उसकी छोटी छोटी side branches निकलती हैं. तो ये कौन सी root होती है? Tap root होती है. ठीक है, इसमें कौन कौन से plant हैं? Plant like pea, balsam, mustard and carrot have tap roots. इन सारे plant में tap roots होती हैं. Fibrous root. In fibrous root, a number of thin roots grow from the end of the stem. So it's the end of the stem and now many branches of the stems arise from there. Okay? एक नहीं है, जैसे यहाँ पर एक ही है ना मेन, यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी हैं, इसलिए इसे फाइब्रस रूट बोलते हैं. कौन कौन से प्लांट्स होते हैं इसमें?
ग्रास, अनियन, राइस एंड व्हीट हैव फाइब्रस रूट। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनकी फाइब्रस रूट होती हैं। इसमें एक चीज और होती है, जब आप टैप रूट के प्लांट्स की लीव्स देखेंगे तो उनकी जो वेनिएशन होती है, वेनिएशन मतलब जो लीव्स में जो ट्यूब लीफ में जो लाइंस बनी होती है वो ऐसे बनी होती है। लेकिन अगर फाइब्रस रूट है तो आप जो उसकी वेनिएशन होगी वो ऐसे होगी, यूं 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 यूं, इस टाइप की वेनिएशन होगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी जो रूट है वो फाइब्रस है या टैप रूट है विदाउट वॉचिंग अंडर द रूट। ओके, ऑफ रूट का क्या काम होता है? दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। सबसे पहले वो प्लांट को होल्ड करके रखें, तभी प्लांट जो है वो ऊपर अप स्ट्रेट खड़ा होता है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल दैट आर यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। रूट का काम होता है सॉइल से फूड और मिनरल्स को एब्जॉर्व करना, ताकि वो उसको यूटिलाइज करके प्लांट जो है फूड प्रिपेयर कर सके। ओके, roots of plants like radish, carrot, turnip and sweet potato are thick, swollen and store extra food. कुछ रूट्स जो होती हैं, कैसे, कौन से प्लांट्स? रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। इनकी जो रूट्स होती हैं वो मोटी और स्वेलन होती हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वेलन है, ये भी, इन्हें भी देख लीजिए, है ना। सो ये सब क्यों ऐसी होती हैं? इसलिए ऐसी होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो होता है एक्स्ट्रा फूड जो होता है, जितना भी फूड जो है प्लांट प्रिपेयर करता है, उसके बाद जो फूड बच जाता है वो सारा फूड कहाँ पे, इन जगह पे जाके स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए ये जो होते हैं वो थिक और स्वेलन होते हैं। तो एक्स्ट्रा फूड यहाँ पर स्टोर हो जाता है, तो इसी को हम खाते भी हैं। इसीलिए वी ईट दीज रूट एज अ फूड। इसीलिए इन जो रूट्स हैं इनको हम फूड की तरह खाते हैं, और इन्हें हम मॉडिफाइड रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं। So now we will study about the shoot system of the plant. I told you that shoot system is above the ground, or shoot system has stem, branches, leaves, buds, flower and fruit. ये सारी जो parts होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? वो shoot system में ग्रो करते हैं। shoot system का सबसे important part, as I told you, stem होता है, because all the other part arise from the stem. Okay, now we will talk about the stems. Okay, stem is the main part of the shoot. It bears branches, buds, leaves, flowers and fruit. ये सारी चीजें यहाँ कहाँ पर होती हैं? स्टेम में होती हैं। ध्यान से देखिए दोबारा से, ब्रांचेस, बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये सब किस पे लगते हैं? स्टेम में लगते हैं। इसीलिए, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम। हर प्लांट की अलग टाइप की स्टेम होती है। अब हम उसको डीपली स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टेम। स्टेम जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली होती है थिक एंड स्ट्रॉन्ग, विच इज ट्री। ट्री की स्टेम्स कैसी होती हैं? थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं। सॉफ्ट एंड ग्रीन, श्रब्स। ओके, जो कि जिसकी स्टेम जो होती है सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है, लाइक बनाना हो गया, ठीक है, वो भी उसकी स्टेम भी कैसी होती है? सॉफ्ट और ग्रीन होती है, और उनकी ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है, ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और लास्ट होता है वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ग्रीन होती है, जैसे कि हर्ब्स, लाइक यू कैन सी मिंट, कोरिएंडर, ये सारे क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? क्रीपर और क्लाइंबर। क्रीपर कौन सा प्लांट होता है? वो प्लांट जो क्रीप करता है अलोंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में जो स्प्रेड करता है, वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है, इसलिए वो ग्राउंड में स्प्रेड होता है, उसे हम क्रीपर बोलते हैं। क्लाइंबर जो कि है किसी भी चीज के सहारे जो ऊपर चढ़ जाए, जो क्लाइंब कर जाए, उसे हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस। ओके, स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? कैरी वाटर एंड मिनरल्स। रूट से वाटर और मिनरल्स को कैरी करके कहाँ पे सप्लाई करता है? वो रूट से लीव्स में सप्लाई करता है, ठीक है। दूसरा, कैरीज फूड प्रिपेयर्ड मतलब खाना जो बन चुका है, यानी कि लीव्स ने फूड प्रिपेयर कर चुका है। अब जब फूड प्रिपेयर हो गया, उसको सारे प्लांट पार्ट में सप्लाई करने का काम कौन करता है? स्टेम करती है। तो इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीफ टू प्लांट पार्ट्स। ओके, let's have a details. Tree like shisham and neem have very hard, thick and woody stem called trunk. The trunk keeps the
ट्री अपराइट, जो ट्रंक होता है वो इतना थिक और हार्ड होता है जिसकी वजह से ट्री जो होता है वो बहुत ही ऊंचाई तक जाता है और स्ट्रेट खड़ा रहता है। बनाना हैज अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, बनाना की जो होती है सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है। यू कैन सी हियर अ बनाना ट्री। प्लांट्स लाइक वाटरमेलन एंड मनी प्लांट, वाटरमेलन और मनी प्लांट जो होते हैं इनकी बहुत ही सॉफ्ट और वीक स्टेम होती है। कैसी होती है? सॉफ्ट और वीक होती है। सच प्लांट आइदर रिक्वायर अ सपोर्ट टू ग्रो और ग्रो अलोंग द ग्राउंड, या तो उन्हें सपोर्ट चाहिए, अगर सपोर्ट चाहिए उन्हें और वो क्लाइंब कर रहे हैं तो उन्हें हम क्लाइंबर बोलते हैं, लाइक मनी प्लांट, है ना। और अगर वो अलोंग द ग्राउंड है, मतलब कि वो ग्राउंड में ही फैलते जा रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, तो उन्हें हम क्रीपर बोलते हैं, जैसे कि वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या है? क्रीपर है। वर्क ऑफ स्टेम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम अपराइट मतलब ट्री को स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। दूसरा, सपोर्ट द ब्रांचेस एंड बियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ये सब मैंने अभी आपको बताया था कहाँ से अराइज होते हैं, स्टेम से अराइज होते हैं। लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। इट कैरीज वाटर मिनरल, आई टोल्ड यू कि ये वाटर मिनरल्स कैरी करता है फ्रॉम रूट टू लीव्स, रूट से लीव्स को वाटर और मिनरल सप्लाई करता है वो। इट कैरीज प्रिपेयर फूड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये जो फूड प्रिपेयर हो चुका है उसको कैरी करके सप्लाई करता है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को, ठीक है। स्टोर फूड इन सम प्लांट, और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें वो फूड स्टोर करता है, लाइक शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर। शुगर केन, पोटैटो और जिंजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, क्योंकि वो हम खाते भी हैं, और दूसरी चीज वो एक स्टेम है, फ्रूट नहीं है, और फिर भी वो फूड स्टोर करता है, इसीलिए उसे हम मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। वी ईट सच स्टेम एज फूड, हम इन स्टेम्स को फूड की तरह खाते हैं। ओके, अभी आप कुछ डिफरेंस देखेंगे। जो शुगर केन है आपने देखा है, जमीन के ऊपर लहराती हुई फसल आपने देखी होगी शुगर केन की। पोटैटो और जिंजर को आपने कभी देखा है? नो। क्यों नहीं देखा? उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर स्टेम दैट ग्रो बिलो द सॉइल। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेम जो होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। अच्छा, अब हम इन्हें अंडरग्राउंड स्टेम क्यों बोलते हैं, मुझे ये बताओ। क्योंकि आपने पढ़ा था स्टेम्स में क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। वो सब कहाँ से अराइज होते हैं? स्टेम से अराइज होते हैं। और ये चीजें जिंजर में और पोटैटो में कहाँ से अराइज होती हैं? पोटैटो से। पोटैटो के ऊपर जो ये बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, इनके ऊपर, जिंजर के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, जहां से लीव्स अराइज होती है। और बर्ड्स किस में होती हैं? स्टेम में होती है, और ये इसीलिए इन्हें मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है और ये बर्ड्स, इनमें बर्ड्स होती हैं और लीव्स भी होती हैं, जो बाद में बर्ड्स होती हैं जिनसे बाद में लीव्स और बेबी प्लांट ग्रो करता है, इसीलिए इसे अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीव्स। ओके, यू कैन सी अ लीफ हियर, राइट। सो अब हम लीव्स के सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लीव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। स्टेम के बाद शूट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? लीफ होता है। एब्जर्व अ लीफ क्लोजली, अब हम एक लीफ को क्लोजली एब्जर्व करेंगे और देखेंगे उसमें क्या है। द ब्रॉड एंड द फ्लैट सर्फेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ प्लेट। ब्रॉड, ये चौड़ी सी, और फ्लैट सरफेस जो है इसे हम क्या बोलते हैं? लीफ प्लेट बोलते हैं। ईच लीफ हैज अ ट्यूब इन द मिडल, इसके मिडल में एक ट्यूब होती है, ठीक है, और उसी की और भी ट्यूब्स, उसी में से साइड ट्यूब्स निकलती है जिसे हम मेन वेन बोलते हैं। एंड मेनी साइड ट्यूब्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन, जिसे हम साइड वेन्स बोलते हैं। दीज वेन कैरी वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ लीफ। ये जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं? वाटर सप्लाई करती हैं, ठीक है, किसको? लीव्स के पार्ट्स को। द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज मैनी टाइनी होल्स, जो इसकी लोअर सरफेस होती है उसमें बहुत सारे लोअर होल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा, और उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, प्लांट जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यू कैन सी अ लीफ ब्लेड, राइट। कौन सा पार्ट होता है? ये वाला पार्ट, ये जो पूरा होता है ये फ्लैट, इसे हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। नाउ यू कैन सी अ ब्राउन कलर मेन ब्रांच, इसे हम क्या बोलते हैं? मेन वेन।
और इसी में से छोटे छोटे साइड वेन निकले हुए, यू कैन सी हियर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, साइड वेन। इनका फंक्शन क्या होता है, मैंने ये बताया कि स्टेम क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल्स लेके लीफ को देता है, लाइक तो स्टेम ने लीफ को यहाँ पर वाटर और मिनरल्स दिया, यहाँ से वाटर और मिनरल्स को लीफ के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है, मेन वेन और साइड वेन। सो लीफ वेन्स कैरी वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ, ये लीव्स के सारे पार्ट्स में वाटर सप्लाई करते हैं। ओके, नाउ ये तो ऊपर का पार्ट था जिसे आप लीफ ब्लेड बोलते हैं। इसके नीचे का जो पार्ट होता है वहां पे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते। यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दीज होल्स, टाइनी होल्स। ओके, सो उन टाइनी होल्स में होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं। ये क्या है, स्टोमेटा है। क्या है, स्टोमेटा। हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमेटा, यू कैन सी इट्स अ ओपन स्टोमेटा। स्टोमेटा ये ओपन है, क्लोज नहीं है। यू कैन सी हियर इट्स अ स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा। और ये क्या है, दोनों ये जो साइड में है ये क्या है, गार्ड सेल है। और ये क्या है, ये पर्पल कलर के आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इट्स अ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। स्टोमेटा जो होता है ब्रीदिंग ऑर्गन होता है प्लांट का। इट प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीफ की लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है। ओके, स्टोमेटा में ही क्या प्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और जो कि क्या करता है, लीव्स को ग्रीन कलर देता है। और उसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, वाई ओनली प्लांट कैन मेक फूड बट एनिमल कैन नॉट। प्लांट ही फूड प्रिपेयर कर सकते हैं बट एनिमल नहीं कर सकते। वाई, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है जिसकी वजह से वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नाउ फंक्शंस ऑफ द लीव्स। लीफ इज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्यों, क्योंकि लीफ जो होती है वो फूड प्रिपेयर करती है, इसीलिए हम उसे फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वो ऑक्सीजन एक्सेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है, जिससे कि क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीज एक्स्ट्रा वाटर इन प्लांट थ्रू स्टोमेटा। और जब सारा काम करने के बाद जो इसकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, प्लांट की बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, उसको भी वो रिलीज करती है। कहाँ के, ओपन स्टोमेटा से। मैंने आपको बताया था ये ओपन स्टोमेटा है, इसी यहीं से वो क्या करती है, एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करता है। जिससे क्या, अगर एक्स्ट्रा वाटर होगा तो क्या होगा, इट्स नॉट गुड फॉर प्लांट ना। तो इसीलिए जैसे स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, वैसे प्लांट की बॉडी से भी एक्स्ट्रा वाटर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। अभी हमने ऊपर सारा कुछ जो पढ़ा उसको अभी मैंने आपको ब्रीफली समझाया। अब हम आगे पढ़ेंगे। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, जिसकी वजह से लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं। क्लोरोफिल हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड हियर क्लोरोफिल हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। क्लोरोफिल ही हेल्प करती है जिससे कि प्लांट जो होती है सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द वर्क ऑफ लीफ। आई टोल्ड यू लीव्स का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फूड प्रिपेयर करना। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट एज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। फूड के लिए वो प्लांट के लिए वो फूड प्रिपेयर करती है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब लीव्स जो होती है वो फूड प्रिपेयर करती है, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया
फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो जो गैस एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन. इट इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दे हेल्प द प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. लीफ जो होती है वो प्लांट को हेल्प करती है ब्रीथ करने के लिए स्टोमेटा के थ्रू. ओके. ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. दे गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू स्टोमेटा. वो एक्स्ट्रा वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करती है. प्लांट लाइक स्पिनिच, कोरिएंडर, कैबेज एंड मिंट स्टोर फूड इन देयर लीव्स. कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अपनी लीव्स में भी फूड को स्टोर करके रखते हैं. वो कौन से प्लांट हैं? स्पिनिच, कोरिएंडर, कैबेज एंड मिंट. दीज लीव्स आर ईटन एज फूड. इन लीव्स को हम फूड की तरह खाते हैं. ओके. नाउ वी विल लर्न अबाउट द flower. You can see a flower is red here. Now it's a pink, right? Why? Flower is so colorful. कोई तो रीजन होगा कि फ्लावर इतना कलरफुल क्यों होता है. Now we will learn about it. Most plant bear flower. Flower are of different shape, size and color. Here you can see I have highlighted the color. Okay, I will give you the reason later. Most flower have a sweet fragrance. Again I have circle here. Flowers में color होता है और sweet fragrance होती है. क्यों? Because so that they can attract butterfly and insect. Flower की fragrance अगर sweet होगी और वो colorful होगा तभी वो attract करेगा butterfly और insect को. जब butterfly और insect को वो अपनी तरफ attract करेगा तो क्या होगा? वो पॉलिनेशन के लिए प्रिपेयर करेगा फ्लावर को, प्लांट को. ठीक है. बटरफ्लाई और इंसेक्ट एक एजेंट हैं जो पॉलिनेशन प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से फूड जो होता है फ्रूट और फ्लावर जो फ्लावर से ही पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद वो फ्रूट बन जाता है. समझ में आया? इसीलिए जो फ्लावर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं. Flower help in reproduction because they produce fruit and seed. Flower reproductive में help करता है reproduction में. क्यों? क्योंकि उसमें fruits और seeds होते हैं. Flower of cauliflower and broccoli are eaten as food. Broccoli, here you can see a broccoli और here cauliflower, इसको भी हम as a food eat करते हैं, as a vegetable eat करते हैं. Okay. Fruit and seeds. Here you can see a mango, an apple and a papaya. Okay. We eat fruit of many plants. Fruits are formed from flower. Fruit कैसे बनते हैं? फ्लावर से बनते हैं. मैंने आपको बताया था. Most of the fruit have seed inside them. ज्यादातर फ्रूट्स में सीड होते हैं. ओके. Seeds are protected inside the fruit. जो सीड्स होते हैं फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं. मैंगो, चेरी एंड पीच हैव ओनली वन सीड. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक सीड होती है. एप्पल, ऑरेंज एंड पपाया हैव मेनी सीड. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी सीड होती हैं. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें बिल्कुल सीड नहीं होती. लाइक पाइनएप्पल हैज नो सीड. पाइनएप्पल में कोई सीड नहीं होती है. नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर. सीड भी अलग अलग शेप, साइज और कलर की होती है. वी ईट सच सीड्स लाइक व्हीट, राइस, ग्राम एंड कॉर्न. जैसे हम कुछ सीड्स को खाते हैं लाइक व्हीट, राइस, ग्राम एंड कॉर्न. इन सबकी जो सीड्स होती हैं उनको भी हम ईट करते हैं. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिबल सीड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडिबल सीड्स बोलते हैं. न्यू प्लांट ग्रो मोस्टली फ्रॉम सीड. ज्यादातर जो होते हैं न्यू प्लांट वो सीड से ही ग्रो करते हैं. लेकिन कुछ प्लांट जो ऐसे होते हैं वो जो वेजिटेटिव ऑर्गन से भी क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं उनसे भी ग्रो करते हैं. लाइक रोज, वो स्टेम से भी ग्रो कर सकता है ना. एवरी सीड हैज अ बेबी प्लांट. हर सीड में एक बेबी प्लांट होता है. इनसाइड इट सीड स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. उसी के अंदर जो फूड होता है वो स्टोर होता है किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए. When a seed get enough air, water and sunlight, the baby plant started growing. जब किसी भी सीड को वाटर, एयर और सनलाइट मिलती है तो बेबी प्लांट ग्रो करना शुरू करता है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड. जब न्यू प्लांट से
न्यू सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। यू कैन सी यहाँ पर एक सीड है जिसको हमने स्नो किया है सॉइल के अंदर। जब उसे हमने पानी डाला तो क्या हुआ, सबसे पहले सीड के भी दो सिस्टम होते हैं, एक रूट होता है और एक शूट होता है। जो शूट है वो तो अंदर ही रहता है, लेकिन जो रूट होती है वो बाहर निकलकर सॉइल में चली जाती है। और जब वो सॉइल में जाती है तो धीरे धीरे उसका जो शूट सिस्टम है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड ग्रो करने लगता है। जैसे उसको सन मिलता है वो उसको जो सीड के दोनों साइड्स है उसको छोड़ देता है और वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। सो इसी को हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।